जिन्हां विच लोकी उलझे ने मिल के लभणे पैणे ने ना दे हल खुशियां दे दुखां दे ताने बाने तो बनदे ने मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मैटर्स ऑफ लाइफ। ਰੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਸ਼ਾਲੋਮ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਗੀਤੂ ਪੌਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਮਸਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਵਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਮੈਥਿਊ ਪਾਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਫਿਲੌਰ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਸਟ ਅਤੇ ਸੈਮਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਸ ट्रेडिशंस। पर रीत रिवाज जो हैं ये दो तरीके नाल इसका संबंध है। एक असी बोलांगे संस्कृति या कल्चर। सो कल्चर जो है रीत रिवाज नहीं है। कल्चर जो है एक किस्म का सोच है, उसके पीछे एक फिलोसफी है और कल्चर एक जीवन का तरीका है। तो कल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग किस्म के रीत रिवाज वगैरह आ जाते हैं। तो रीत रिवाज जो है हमारे जो अंदर में जो बिलीफ है और हमारे अंदर में जो सफियदा है, इसका एक्सप्रेशन देंगे। तो इस दे लई किसी किसी दे लई कोई खास मकसद होवेगा, कोई कोई ऐसा भी हो जाते जो परंपरा में ऐसे मिली आए सानू। तो इस करके एक एक दे बारे सोचना जरूरी होगा, इसका क्या ओरिजिन है, कित्थों आए हैं, किस लिए किए गए हैं। जेकर सानू ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। तो इसलिए आजकल ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो नवे जमाने दे विच इंसान सवाल करते होंगे असी क्यों करते, ਇਹਦਾ मतलब क्या है। तो ਜਦੋਂ मतलब समझ के ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਰਫ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸੰस्कृति जो है कल्चर जो है ये इस तो मदद कर रहे तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਲਚਰ ਇਸ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਲਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ बढ़कर ਹੈ तो इसलिए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ सोचना है ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ फैसला करना अच्छा होगा जनरल में ਅਸੀਂ बोलेगा तो फिर उसमें गलतियाँ भी आ सकती हैं तो उससे पीछे क्या सोच है उसने जान के फिर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾएंगे ਕਈ ਵਾਰੀ धार्मिक होंगे कई बारी सामाजिक होंगे नॉर्मली इंडिया में बहुत सारे जो हैं धार्मिक तौर पे रिलेटेड है पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो धार्मिक नहीं है एक रीति है तो ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 7 ਬਾਬ ਉਸਕੇ 13ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨੋਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ में ये और भी नॉर्मल होगा क्योंकि ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾएंगे ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣਿਆ यूनानियों के लिए मैं यूनानी बनिया तो ये सब का मतलब क्या है एक भाषा बोलना भी एक तरीके नाल संस्कृति ਨੂੰ स्वीकार करना तो ਜਦੋਂ कोई सुना पंजाबी बोलते हैं ठीक है ताकि लोगों को समझ में आए तो ये भी भाषा भी संस्कृति का एक हिस्सा है भाषा भी एक तरीके से साढ़े रिवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ उसमें किसी ਨੂੰ किस तरह बोलना किसी ਨੂੰ किस तरह बुलाना जिदा जापान में जाएंगे तो हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे वो हाथ नहीं आगे बढ़ाएगा वो इतना खड़े होके सिर निमा करेगा तो जो कल्चरल इनकाउंटर होंगे एक दूजे को पता होना जरूरी है तो जापान में जाएगा तो यह चंगा होंगे सारियां दे सामने असी उस तरीके नाल दूजे को ग्रीट करें जिदा जापान के कीते जाते उत्थे जाके असी उन्होंने इंडिया के स्टाइल ग्रीटिंग करोगे बाकी लोगों को लगेगा की करते हैं तो लोगों के सामने भी असी ध्यान रखना चाहिए इस देश का रिवाज की है इस देश में की चंगा मनिया जाता है तो इस ईमान दे कोई लेन देन नहीं तो इस तरह इन्हें फर्क करना चाहिए सानू दूसरों के रिवाजों को अपनाना आना चाहिए हाँ जी जो इस ईमान के खिलाफ कुछ नहीं है और इसमें अपनी एक महत्व है एक एक देश में महत्व दिता जाता उन्हें अपनाने जरूरी है ताकि तो असी अच्छे नागरिक बनाएंगे सो फादर जी की रीति रिवाज ईसाई फेथ नूं
ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਵਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? इसमें देखो अभी ईसाई भी या पता नहीं कौन से चर्च में हो रहे, जो भी चर्च है मेरे ख्याल में तकरीबन बहुत सारे चर्चेस में अंगूठी लगाएंगे, रिंग्स तो चेंज होते हैं जी पर ये इंडिया की संस्कृति नहीं है, जी ये तो फॉरेन है। बाकी जो मेरे ख्याल में सारे चर्चेस में, बहुत सारे चर्चेस में लोग वाइट कपड़ा पहन के जाते हैं जी या वाइट गाउन पहनते हैं, नेट पहनते हैं। जी ये भी इंडिया की संस्कृति नहीं है, जी, ये बाहरली है। ये बाहर लिए कोई कोट पहन के जानते हैं। जी कपड़ा पहनने का तरीका भी इंडिया का नहीं है जी ना। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। तो ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। जी ठीक है, क्रिश्चियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर में बहुत कुछ क्रिश्चियन रिलीजन का असर है, पर यूरोप में कहते जाते सब कुछ क्रिश्चियन ਅਸੀਂ बोल नहीं सकते। तो कल्चर एक अलग बात है जिसमें रिलीजन ने कंट्रीब्यूट किया, जी पर कपड़ा किस तरह पहनना है, किहड़े रीत का इस्तेमाल करना है, किहड़े साइन का इस्तेमाल करना है, ये सब उसमें फ्रीडम है। ये तो अभी देखो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा मुंदी पाउना है जी या कितने भी चिट्टे कपड़े पाउना, इदा तो कुछ लिखा तो नहीं है, पर एक ट्रेडिशन हो जाता। जी तो इसलिए इंडिया में भी अपने एक ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशन कितने लिखा है मैंने पता नहीं, पर किते जाते ट्रेडिशन फॉलो करी जाती, जिस करके लोगों को लगता असी एक खास रस्म के हिस्सा लेने लिए आए। जी तो जेकर असी उस नज़र नाल देखांगे जिदा मैं समझदा हाँ, चाहे मेहंदी लगाना होवे, सेहरा पाउना होवे, ये सब दे विच ईमान के खिलाफ तो कुछ नहीं है। पर जेकर कोई ये पीछे कोई ऐसे रिसर्च करके कोई कटदा यदा मतलब ये है और उन्हें पता लगता कि इस करके ये साढ़े ईमान के खिलाफ है, फिर ठीक है वो ना मने। जी पर जदों तक उन्होंने इस तरह की कोई गल का पता नहीं है, फिर सवाल ये भी है अगर पता नहीं है तो क्यों करना, ये सवाल भी आ सकते। पर एक समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, समाज ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ है उसके मुताबिक चलना सही है, क्योंकि जेकर ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, जी तो फिर वो कमी ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। जी ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, जी तो संसार ਦੇ ਲੂਣ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਜੋ ਹੈ। तो जेकर इस ते करके असी अपने जीवन के राही समाज के विच कोई बुरे स्वाद लेके आते या बुरे असर पाते हैं, फिर तो असी नहीं करना चाहिए। पर जेकर ये रहने करके इस तरह असी इनू इस असूल नू फॉलो करने दे करके साडा एक समाजिक जीवन के विच असी वधिया तरीके नाल हिस्सा लेंदे आ या उसके अच्छा हिस्सा बनते हैं, पर इनू असी नैगेटिव तौर पर नहीं देखना। पर इसलिए हर एक नू ऐसे फैसला करने तो पहला थोड़ा सोचना अच्छा होगा, क्यों इस तरह करना या कोई इस तरह नहीं करना। पर ज़्यादातर मैं बोलाँगा कि जिवें असी एक क्रिश्चियंस जो है कि माइनॉरिटी है और बाकी एक मेजोरिटी कम्यूनिटी है, तो इसलिए क्रिश्चियंस का एक ये फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं किस तरह अपने आप दूजियां तो वखरा करा। वखरा होगा तो किस गल दे विच होना, अपने ईमान दे विच होना जरूर है, दूसरा अपने मॉरल प्रिंसिपल्स दे विच होना जरूरी है। जिस तरीके नाल वो सच्चाई के पीछे चलता है ये अलग होना जरूरी है, यानी कि दूसरे ऐसा नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, पर रीत रिवाजां तो सिर्फ असी अलग रखते हैं अपने आप को, पर बुराई तो अलग नहीं रखते, फिर तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये समझ नहीं दसी असी थोड़ा दिल पवित्र होना चाहिए, जिस मरकुस अंजल में यही कहते दिल के अंदरों बहुत सारी चीज़ां आउंदी, तो उन्होंने वरजना बहुत जरूरी है। बाकियां गल्लां दे विच असी दूजियां नाल मिल के रहना समाजिक तौर पे भी और निजी तौर पे भी एक अच्छी मनोभावना होਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਘੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ,
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? देखो त्योहार दो किस्म के त्योहार है। एक जो है धार्मिक त्योहार, जी दूसरा जो है कुछ त्योहार है जो हमारे सीजन के मुताबिक है, जी नेचर में। जैसे आप देखा होगा वाडी के समय होते हैं, एक त्योहार है। तो वाडी जो है सिर्फ किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है। जी जैसे वैसाखी आ जाएगा, ਵਿਸਾਖੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਡੀ ਹੈ। ਵਾਡੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜੀ तो इसी तरह तो मौसम बदलते बदलते तुसी देखोगे बहुत सारे त्यौहार मौसम के नाल जुड़े हुए हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार जो है, दिवाली भी जैसे मौसम के हिसाब से देखेंगे, एक अच्छा समय में आ रही, गर्मी खत्म हो गई, फिर अच्छा मौसम आ गई, जी दिवाली उस समय आ जाती, एक बदलाव का समय है, तो सारे लोग खुश हो जाते हैं। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖेंगे अपने जिदा सर्दी खत्म हो जाती, उस समय भी होली आ जाती। जी तो ये सब दे पीछे हो सकता है कोई ना कोई अलग अलग तरीके से धार्मिक रीता नाल उन्हें जोड़ेगा। सारे त्यौहार के पीछे बाइबल में भी जो त्यौहार है, जैसे पसहा है जी या तंबुआन का त्यौहार है, जी ये सब दे पीछे भी धार्मिक एक्सप्लेनेशन जरूर है, धार्मिक वजह है जिस करके जिन्हें याद कीते। पर यह सब उस तो भी बढ़ के एक धार्मिक या एक धर्म के लोगों के एक त्यौहार तो बढ़ के एक कौम दे या पूरा पूरा देश दे एक त्यौहार बन जाते होंगे। जी जिदा दिवाली अभी है, दिवाली के समय तकरीबन सारे लोग कोई मोमबत्ती या दिवाली जलाते होंगे, जी पर किस सोच नाल करना है वधिया, हनेरे में जोत जो है चमकना चाहिए। जेकर मैं रात को जाके एक मोमबत्ती जलाऊंगा, मैं सोचता हूँ यसु मसीह ने किया तुसी संसार दे जोत हो, जी तो मैं उसमें याद करके जो जलाएंगे दिवाली है। जी तो दिवाली मेरे जीवन में भी हो सकता है। जी ये नहीं कि मैं बोलूँगा ये बाकी लोग मनाते मैं नहीं मनाना। तो एक मन की सोच है कि किस ढंग दे नाल असी समाजिक जीवन दे विच हिस्सा ले सकते हैं। जी और जदों जरूरी नहीं है और जदों कोई बुराई नहीं है, फिर अपने आप को इस तरह वक करना सही गल नहीं सही है। नहीं है। क्योंकि बच्चे भी उन्होंने भी सीखने चाहिए कि एक समाज में रहना। पर कई गल्लां इस तरह भी हो सकते जेकर इस दे विच कोई ऐसा गल है जो बिल्कुल साड़ी ईमान के खिलाफ है, जिस करके मैनू लगता कि मेरे ईमान नू ठेस पहुँचता, फिर नहीं करना। पर इत्थे सवाल आ जाते ईमान दे क्या मतलब, ईमान दे निचोड़ क्या है, ईमान दे विच किहड़े गल्लां नू तुसीं पकड़ के रखना चाहुंदे हो, किहड़े गल्लां तुहाडे लई जरूरी है, किहड़े गल्लां इदां इहदे नाल जुड़ गए जो इन्ना खास नहीं है। मतलब नॉर्मली देखिए यसु मसीह दे समा भी धर्म दे नाल बहुत सारे रिवाजां जुड़ गए सी, पर उन्हें धर्म दे नाल कोई खास रिश्ता नहीं सी, जी तो उदां दीयां गल्लां छोड़ भी सकदे इंसान। तो इसलिए असी समाज दे विच रहिंदे समय असी ये देखना है कि जो कॉमनली मनिया जाता है, जो एक्सेप्टेड है, जेकर इस दे विच कोई बुराई नहीं है, इस दे उल्ट इस दे नाल नहीं चलन दा करके कई किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तरीके से मैं आइसोलेटेड हो जाऊँगा, फिर उत्थे जो सही है करने में कोई गलती नहीं है। नहीं क्योंकि ऐसे रीति रिवाजां दा करके कोई भी इंसान बाकी समाज तो अपने आप को आइसोलेट करना मेरे हिसाब से वो बाइबल की सीखिया तो नहीं, तो मुझे ना ही कलीसिया की सोच है। जी क्योंकि कलीसिया की शिक्षा जो है इसमें सारे कल्चर को रेस्पेक्ट करने के लिए बार बार दसिया गया है। तो कैथलिक चर्च में विशेष तौर पर इस करके अलग अलग लैंग्वेजेस में असी प्रार्थना करते हैं। जी एक एक जगह में जाके उत्थे उत्थे जो रिवाज हैं, जो रीति हैं, उस रीति को अपनाते हैं, क्योंकि उसमें कोई बुराई तो नहीं है। जी पर जेकर कोई अंधविश्वास है वो सबनों नहीं करना
क्योंकि उस तो छुटकारा पाना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग किसी अंधविश्वास में फस के फिर उसके शिकार हो जाते। जी उत्थे फिर जाके असी फर्क करना चाहिए, वो तो रिवाज नहीं, अंधविश्वास है, जी तो इसमें भी फर्क करना बहुत जरूरी है। ਜੀ ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਸੱਜਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ दूल्हे ਵਾਸਤੇ, तो ज़रूरी भी है क्योंकि वो अपने दूल्हे वास्ते मेहंदी लगाउंदी है या चूड़ा पाउंदी है या वधिया ड्रैस पाउंदी है, वो ज़रूरी है क्योंकि वो सोहना बनदी है अपने दूल्हे वास्ते। इसी तरह त्योहारां दे विच अगर किसी त्यौहार दे विच कोई बुराई नहीं है या अंध नहीं है या साडे ईमान नूं ठेस नहीं पहुंचती तो असीं वो कर सकते हाँ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ईमान दियाँ 4 खास सच्चाइयाँ, तो ਅਸੀਂ बोलेंगे ये तो इस तो बिना कोई मसीही नहीं बन सकता जी। तो जेकर कोई ईसाई ईमान ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ खुदा है जी और खुदा बाप बेटा ते रूप आके जी, ये ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ जी ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। जी दूसरा ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ खुदा दा बेटा ही इंसान बने साड़ी नजात दे वास्ते, तो सलीब ते मर गए, दफनाए गए, जी उठे जी। तो ये खास बात है, तभी तो ईसाई विश्वास होंगे। तो तीसरी आगे असी ये बोलते हैं खुदा एक इंसाफ करेगा, नेक लोगों ने हमेशा दी जिंदगी देगा, ये भी हमारा ईमान की खास बात है जी। तो जेकर मसीही ईमान के बारे दसांगे, कैथलिक तालीम जिदा असी बच्चे ने सिखाते हाँ, ये तिना गल्लां नूं हमेशा या 4 गल्लां नूं जोड़ के पकड़ना जरूरी है जी। जेकर कोई भी गल दा मतलब कोई खुदा नूं नहीं मन्ने तो विश्वासी नहीं बन सकते जी। जेकर वो यीशु मसीह ने सिर्फ एक इंसान मनदा है या ये सोचता है कि यीशु मसीह ने नहीं मरिया है, इदा सोचेगा तो वो गलत है जी। तीसरी गल है जिसके बारे आजकल बहुत प्रॉब्लम है कि खुदा लोगों का इंसाफ करेगा, तो इंसाफ तो होंदे हैं असी मनते हैं कि मौत तो बाद एक इंसाफ करेगा प्रभु, तो इसके पहले क्या होते हैं इत्थे बारे यीशु मसीह ने पापां दे माफ़ी दे लई अपने जान की कुर्बानी दे दी। तो कुर्बानी के बारे समझते समय क्रिश्चियन लोगों के बीच में जो ईसाई लोग हैं इन्हों के विचकार अलग अलग किस्म के विचार है। कुछ लोग ये विचार रखते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब ते जान की कुर्बानी दे दी, इस करके सारे पाप माफ़ हो गए जी। तो इसलिए एक मजाक में बोलते होंगे सिन बोल्डली एंड ट्रस्ट फर्मली, मतलब पक्का ईमान रखो फिर गुनाह करो, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। क्योंकि विश्वास करना कि प्रभु ने मैंने माफ़ी देना है, प्रभु ने माफ़ी हासिल किया, ये ईसाई विश्वास नहीं है। भावे यीशु मसीह का नाम लेंदे हैं, यीशु मसीह ने अपने कुर्बानी दे राही सानू इस तरह की इजाजत नहीं देते तुसी आगे जाके जिन्ना मर्जी पाप करी जाओ, ये नहीं। पर जदों भी कोई इंसान अलग अलग तरीके नाल गुनाह दे शिकार है, गुनाह दे बंधन विच है, उसने छुटकारा देने की शक्ति यीशु में। और दूसरी गल है जिद्दां संत पौलुस गलातियां दे लई लिखदा हुंदा 5 बाब दे विच कहंदा तुसी अपने आसां दी दा गलत वरतों ना करो, सही इस्तेमाल करो। तो मसीह लोगों को सोचना चाहिए कि मेरी आसादी का मैं किस तरह इस्तेमाल करता, और आसादी का इस्तेमाल करने के पीछे 2 गल्लां जरूरी है, एक साड़ी सोच है, दूसरी साढ़े काम है। और नॉर्मल में बहुत सारे लोग अपने सोच के मुताबिक काम करते, जिहड़े गल तुसी सही समझते हो चंगा समझते हो तुसी वो करेगा, जिसमें तुसी बुरा समझते हो नहीं करेगा। तो मसीह धर्म के मुताबिक असी किस गल नूं सही मनते हैं, जो आम रीति में बोलेंगे जो सारे लोगों के समझ में आ जाएंगे वो यही है। मत्ती दी अंजील दे 7 बाब दे 12 में गोल्डन रूल लिखे,
ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ में बोलेगा तो ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਚੱਲਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਚਰਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ में ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। जी मेरे ख्याल में बहुत सारे अलग कलीसिया इस तरह नहीं मनते। कहीं नहीं मानते जी। तो कैथोलिक कलीसिया में रोज़ां दा एक समा है, रोजे रखते। उस समय असी जिन्ना हो सके शादी वगैरह में नहीं जाते, शादी वगैरह रखते नहीं है। जी ये क्यों इदा करना, हर साल रोज़ा क्यों रखना? सवाल करेंगे हर साल क्यों बड़े दिन मनाना, जी हर साल क्यों ईस्टर मनाना? एक सौखे तरीके से इसका जवाब मैं दे दूँगा तुम्हें। हर साल बच्चों के पेपर क्यों लेना? हर साल तो पेपर होंगे, एक ही बार पेपर लेना काफ़ी नहीं है। तो हर साल पेपर लेने का मतलब है अज मैंने इन्ना पढ़ाई की थी तो इस करके मैंने इन्ना नॉलेज हासिल हो गया, मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ और टेस्ट दे के मैं प्रूव करदा, बच्चा प्रूव करदा मैंने इन्ने कुछ आ गया, मैं अगले क्लास में जा सकता। तो पुराने ज़माने में सारे इदा नहीं सी जानते होंगे। जेकर कोई मान ली 1 से 100 तक नहीं सीखे सीगे फिर तो पहली क्लास में नहीं जा सकते सीगे या फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं जा सकते, क्योंकि सेकंड क्लास में 101 तो शुरू होता सी। तो जिन्होंने 100 तक नहीं आया वो क्लास में नहीं सी जानते। आजकल ऑल प्रमोशन इस करके जानते हैं, पर इदा नहीं सी। तो मसीही रूहानी जीवन दे विच भी असी बोल सकते हैं कि रोज़िਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ जो है एक टेस्ट ਦਾ ਸਮਾਂ है। जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ थोड़ा जांच करके देखते हैं। 1 साल बीत गया मेरे जीवन में, 1 साल में रूहानी जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे अंदर कोई बदलाव आया कि नहीं? जी हो सकता है कि मैं कोई नेकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ नहीं कर सकता। मान लो कोई बिजनेस भी चला ਹੁੰਦਾ, बिजनेस चलाने वाले इंसान ने भी देखना चाहिए कि पैसा किस तरह है, मेरे पास आमदनी कैसे है, किस तरह बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सोचेंगे तो ही तो उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह ही ये रोज़ां दा समा दा एक मतलब है। रोज़ां दा समा इंसान के रूहानी जीवन दे विच आगे बढ़ने के लिए एक समा है। इसमें एक और बात है जो है असी सारे संसारिक और जिस्मी तौर पर जीवन बिताने वाले हैं, पर जिसम के इच्छा के अनुसार चलने वाले रोमियां के 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ जिस्मी हैं। तो रूह के मुताबिक चलते हैं वो रूहानी हैं, स्पिरिचुअल और बॉडीली कहते होंगे। हुण रूह के मुताबिक चलना फिर जिसम के मुताबिक चलना, ये कई बार एक टकराव आ सकते। संत पौलुस रोमियां के नाम पत्र के कहते होंगे मैं वो भलाई नहीं कर पाऊँगा जिहड़ा मैं करना चाहता, पर मैं वो बुराई करदा जिहड़ा मैं करना नहीं चाहता। तो ऐसा हालत सारे इंसान के जीवन में है। तो इस हालत में सानू किस तरह इस तो मुक्ति मिलेगा? एक तो यसू तो मुक्ति मिलेगा, दूसरा है इसके लिए यसू की कृपा दे नाल असी अपने ही जिसम के उत्ते एक जित पाना जरूरी है। और ये किस तरह होंगे? जो कोई भी डिसिपलिन में तुसी जाओगे तुसी देखोगे लोग अलग अलग किस्म के डिसिपलिन में रहते होंगे। तो पता मान लो किसी ने अपना फिगर अच्छा रखना, फिर वो जिदा मर्जी खा पी नहीं सकते, ठीक है ना। मैं कई बार बच्चों बोलता हूँ देखो सिनेमा में कई सारे एक्टर बहुत शराब पीते हैं, बहुत सिगरेट वगैरह पीते होंगे, पर असली लाइफ में जेकर इस तरह करते रहते तो क्या हो जाते, उसका सेहत पूरा बिगड़ जाना सी। पर ये जो कोक का या पेप्सी कोला का एडवर्टाइजमेंट करने वाले पूरे समय ये नहीं पीते रहते, ये पीएगा तो उसका सेहत खराब हो जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन है। एक्टर्स होगा मेरे ख्याल में तकरीबन सवेरे हर रोज़ जाके कई घंटे वर्कआउट करते होंगे, फिट रखते होंगे। तो जिसमें तौर पे सानू सिंगर्स जो है
सिंगर्स को अपने वॉइस का प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो इंस्ट्रूमेंट बजाते वो लगातार बजाते रहते हैं और नवे नवे तरीके टेक्निक सीखने के लिए कोशिश करते हैं। इस तो बिना प्रोग्रेस नहीं होगा। तो एक होंगे असी जो किते जो करते हैं वही करते रहना, दूसरा जो है कुछ और बढ़िया करना। तो कुछ और बढ़िया करने के लिए कुछ और नए तरीके से सोचना है। तो बेसिक सोच ये है कि मैं जिंदगी में और कुछ और बढ़िया कर सकता कि नहीं। तुसी इदा सोचोगे और वो सोचते करके तुम्हारे एक तरीके से गाइड होगा, तुसी किसी वाले सोचेगा, एक फैसला लेगा। तो रोजाना का समय ऐसा सोचने के लिए एक समय है, रोजाना मानना एक रिवाज है, ऐसा फल जरूर है। तो ऐसे कैथोलिक चर्च में बहुत सारे रिवाज हैं। जेकर से बोलेंगे तो अभी कैथोलिक में बाकी जो क्रिस्त हैं बाकी लोगों को कम्यूनियन बोलते होंगे या टेबल ऑफ द लॉर्ड कहते होंगे, एक तरीके से एक रिवाज है। यीशु मसीह दे आखिरी भोजन ਨੂੰ याद रखना। क्यों याद रखना? सिर्फ रिवाज तौर पे याद रखना नहीं है, उसके पीछे एक बहुत अच्छा एक सिक्ख्या सन। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने जीवन की कुर्बानी दी उस तरह असी भी प्यार दे विच आगे बढ़ना है और उसके जीवन दे विच असी शामिल होना, ये सिक्ख्या उसके पीछे है। तो इस तरह मसीही रिवाजा भी है बहुत, और ये भी बाकियों के लिए वो पता नहीं किस तरह उन्होंने देखेगा, पर असी इन्हू बोल सकते हैं, असी इस तरह करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मतलब है। तो रिवायतों का और रिवाजों का जरूर फ़ायदा है और रूहानी जीवन में भी ये अपने एक रोल अदा कर सकती है जरूर। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਥਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸਕਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ नहीं? एक ऐसा ब्लैंकेट में ऐसे नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते जी ठीक है। तो एक एक के बारे उन्हें सोचना होगा। जी तो क्योंकि कई बात हो सकती है कि जो बिल्कुल एक तरीके से अंधविश्वास नाल जुड़े हुए हैं। जी अगर ऐसा है तो फिर वो नहीं करना, जी क्योंकि वो विश्वास से उल्ट हो जाते। जी पर मान लो जिदा तुसी जाके राखी बनना, उदाहरण लो तुसी राखी बनना कि नहीं बनना। जी उन्हें राखी बनने के नाल समाजिक तौर पे एक रस्म है जिसका करके एक रिश्ता बनिया रहता, जी भैन भरा दा भैन भरा का रिश्ता बनिया जी रहता। तो मेरे ख्याल में प्राण भी चंगा लगेगा। जी कई बार असी सोचेंगे ना पेड़ नहीं आए, पेड़ मिल नहीं पाए, जी पेड़ भी चंगा लगेगा मेरा कोई है, मेरा जी। कोई रखा है, ऐसा एक भी रिश्ता है। तो जेकर इस रिश्ते दे करके कोई जाके राखी बाने वधिया कर ले, जी इसको मना करने दे विच कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वचन के मुताबिक इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी वचन ये भी नहीं कहता तुसी बनना चाहिए था, क्योंकि दूसरे देशों में है नहीं। जी ये सारे संस्कृति का हिस्सा है। जी जिवें असी इंडिया में है और इंडिया में खास करके पंजाब में है, तो पंजाब के रीति रिवाज का हिस्सा है। तो इसमें अपने पंजाबी होने का एक निशान है। तो इसमें ईसाई लोग पंजाबी लोग हैं, पंजाबी हैं, ये नहीं कि असी अंग्रेज हाँ। तो इस करके देश के जो रिवाज है जिदा असी पंजाबी बोलते हैं, नहीं तो असी ये नहीं कि असी दूजे बोली बोलते हैं। खाना भी दर्दे असी पसंद करते हैं, जी ये भी एक रिवाज है, एक रिवाज का हिस्सा है। जी तो इसी तरह बहुत सारे गल्ला है जो असी करना चंगा है। हो सकता है कई बार मैंने देखा है, कई बार जो जैसे संस्कार होंगे उसके नाल कई रस्म होंगे किसी अंधविश्वास नाल जुड़े हुए होंगे। जी तो जिसनों मैं बोलता हूँ जरूरी नहीं है, करना जरूरी नहीं है। मैं वैसे मना तो नहीं करता। क्यों नहीं मना करता? क्योंकि हो सकता उस घर दे विच कोई होगा जिन्हें सोचना है ऐसा नहीं किया इस करके साढ़े उत्ते कोई बुरा हो गया होगा। जेकर घर दे सारे विश्वासी हैं फिर उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई गल्लां असीं छड़ सकते हैं। जी पर कई बारी किसी लोगों के मन में वहम रह जाते। पर वैसे तो जेकर अंधविश्वास नाल जुड़े हुए हैं फिर उन्होंने असीं छड़ सकते हैं। जी तो मेरे ख्याल में एक इसका जवाब ऐसा ही होगा, जेकर वो अंधविश्वास नाल जुड़े हैं ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
नहीं करी। ਜੀ पर जेकर वो विश्वास के खिलाफ नहीं है और ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਪਿਆਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹੀ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो जिदा कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ है आत्मिक जीवन में आगे चले लोग, वो सारे बहुत सारे ने प्यार करना ही सिखाया। टैगोर ने बहुत अच्छा एक लाइन लिखा है, टैगोर ने जो लाइन लिखा है इस तरह है, वन हैज़ नोन दी एलियन देयर इज नन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। तो मेरा करके या साड़ा करके जो फ़र्क है इसके विच एक तरीके से प्रभु से दूरी है। पर जदों साड़ा भल इस करके प्रभु यीशु ने जदों प्रार्थना करना सिखाया, साढ़े बाप की प्रार्थना सिखाए, वो प्रार्थना में तुसीं याद रखो कितने भी सिंगुलर नहीं है, मैनू दे मेरा कसूर, इतना कितने भी नहीं है, सिंगुलर है ही नहीं उसमें। शुरू तो लेके अंत तक प्लूरल ही है, बहुवचन है। साडा बाप है, साढ़े कसूर सानू माफ़ करो, सानू बचाओ। तो इस तरह मसीही सोच जो है सारियां लिए एक सोच है जिसके विच कोई भी बाहर नहीं, इसलिए सारियां नू नाल लेके चलना एक भावना होना चाहिए। और इसके लिए जो भी फलदायक है सहायक है उन्होंने असीं चंगा समझिए। जेकर कितने गलती है जो प्रभु तो दूर ले जाता है या इंसान एक दूसरे के खिलाफ सेट करता है, उन्होंने असीं बुरा समझिए। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤੂ ਪੌਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ।